some related to what? Questions related to merger and acquisition. So now here is a question that is related to merger and acquisition, and it has been asked in exam as question number 3A. Okay, so what is given? Sigma Limited, राइट है? क्वेश्चन क्या दिया अपने को? Sigma Limited. ओके, Sigma Limited is intending to acquire in क्या? Sigma Limited is intending to acquire Sigma Limited. तो राइमिंग वर्ड्स है, याद रखना, राइमिंग नेम है, तो कंफ्यूज मत होना. अब Sigma Limited is intending to acquire Sigma means what? Sigma कौन है? Acquiring. And Sigma target. Remember it. समझा बेटा? Clear? So acquiring company, and this is what? Target company. Got it? By merger, and following information is available in respect of the companies. Or following information available है in respect of the companies. Now what are the information? See here. Equity share capital of rupees 10 each, rupees in lakhs, that is 450, 180. Okay. Earning after tax 90 and 18 means rupees in lakhs hai. So 90 lakhs and 18 lakhs. Okay, rupees in lakhs is given. Market price of each share, that is 60 and 37. So this is what? MPS. This is what beta? Your MPS. Okay. Now, on the basis of the above information, you are required to calculate following. First, what you have to calculate? What is the present EPS of both the companies? First, you have to calculate what? Present EPS of both the companies. Okay, we will. Secondly, what is the present price earning ratio? P ratio of both the companies. P ratio पता ना, बहुत important है बेटा. P ratio के बेसिस पे ही लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. समझा? देखते हैं जिधर पी रेशो कम रहेगा वो टाइम पे पैसा लगा देने का. बराबर, वही देखते हैं लोग. पी रेशो कम है, पैसा लगा दो. मालूम पड़ा कि नहीं? तो व्हाट इज द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज? क्लियर? क्या बेटा? प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज. ठीक है. इफ प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस, व्हाट वुड बी द न्यू ईपीएस ऑफ Sigma लिमिटेड? अगर मर्जर होता है बेटा, if proposed merger takes place, so what would be the new EPS for Sigma Limited? Okay, assuming that the merger takes place by exchange of equity shares and exchange ratio is based on current market price. See, आपका exchange ratio मतलब जो swap ratio है वो किसके बेसिस पे रहेगा? MPS, market price के बेसिस पे. Okay, now final one, what should be the exchange ratio, that is swap ratio, if Sigma Limited want to ensure the same EPS to members as before the merger takes place? Finally, kya? What should be the exchange ratio if Sigma Limited want to ensure the same EPS to members as before the merger takes place? तो अब इधर क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज रेशियो कौन से बेसिस पे लेना पड़ेगा आपको? ईपीएस के बेसिस पे. Got it? तो ये आपका क्वेश्चन है. Now we will going to solve it step by step. So get ready everyone with your calculator also. Come on. So dear students, for the purpose of solution, सबसे first अपने को क्या बोल रहा है? First we have to calculate A, that is present EPS of both the companies. Okay? So present EPS. तो EPS का फॉर्मूला सबको पता है. EPS कैसे निकालते हैं हम लोग? जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्स है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स. अर्निंग आफ्टर टैक्स इसीलिए लिया ना क्योंकि प्रेफरेंस का कुछ है नहीं, है क्या? कुछ नहीं है ना. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही आपका सब कुछ हो जाएगा. वो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं ना बाकी कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने को, है नहीं कुछ, ऐसा कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो चलो ईपीएस का फॉर्मूला लिख लो पहले. ईपीएस, प्रेजेंट ईपीएस निकालने को बोला है, तो ईपीएस इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो ईएटी, डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, चलो सबसे पहले किसका निकालोगे आप? Sigma.
जिग्मा लिमिटेड। हाँ, और अगर आपको लिखना है तो इधर साइड में लिख सकते हो जिग्मा लिमिटेड कौन है, अपने रेफरेंस के लिए, बाकी जरूरी नहीं है, खाली याद रखोगे तो फिर भी चलेगा। जिग्मा लिमिटेड आपका एक्वायरिंग है, और सिग्मा कौन है, टारगेट। ओनली फॉर योर रेफरेंस, दैट्स इट। चलो जिग्मा लिमिटेड का ईपीएस निकालो। ईपीएस, चलो इसका अर्निंग आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में कितना दिया आपने को, 90 लाख दिया है, राइट है, हाउ मच, 90 लाख, सो रुपीज 90 लाख है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने अपने पास, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लो, सी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इधर देखो, हाँ 450 है और फेस वैल्यू 10 है, तो 450 डिवाइड बाय 10 मतलब कितना हो गया, 45 lakhs, 45 lakhs इक्विटी शेयर्स आर देयर, बराबर है, पूरा वॉल्यूम है 45 lakhs का, ओके तो आ जाओ, सो 45 lakhs, चलो बेटा ईपीएस कितना हो जाएगा बोलो, 90 डिवाइड बाय 45, तो इधर ईपीएस कितना आ गया, 2 पर शेयर, तो ईपीएस आ गया आपको ₹2 per share. This is for what? Sigma. Okay. Now we will calculate for sigma. अब करते हैं कैलकुलेट फॉर सिग्मा। चलो भैया सिग्मा लिमिटेड, वही ईपीएस फॉर्मूला, ईपीएस इज इक्वल टू व्हाट, वही अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स इसमें कितना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 18 लाख है, बराबर है, अर्निंग आफ्टर टैक्स इधर कितना दिया बेटा, 18 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट, 18 लाख है ना, देखो इधर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दिया है, सिग्मा का, सिग्मा यू कैन सी हियर अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 18 lakhs, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 180 डिवाइड बाय 10, तो ये भी तो 18 lakhs हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी 18 lakhs है, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज आल्सो 18 lakhs, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नंबर कितना है, 18 lakhs ही है, मतलब इधर ईपीएस कितना आ गया, 1 पर शेयर, ₹1 पर शेयर, दैट्स इट, डन, ओके किसी का बाकी है, डू इट फास्ट नाउ। अभी ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना डन, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है आपको निकालने के लिए, सी बी में क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज द प्रेजेंट पीई रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज, अब प्रेजेंट पीई रेशियो निकालना है आपको, पी रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज, ठीक है, पी रेशियो का फॉर्मूला तो सिंपल याद रहना चाहिए माइंड में, एमपीएस अपॉन ईपीएस, क्या एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो चलो बी करते हैं हम लोग, प्रेजेंट ईपीएस, पहले हेडिंग डाल देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट ईपीएस, सॉरी प्रेजेंट प्राइस अर्निंग रेशियो है ना, सो बी माय डियर स्टूडेंट्स, बी क्या, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्राइस अर्निंग रेशियो, calculation of present price earning ratio, that is known as what, PE ratio, price earning ratio of both the companies, of both the companies, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी रेशियो का फॉर्मूला सबको पता ही है, पी रेशियो दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला, एमपीएस अपॉन ईपीएस, याद रखने का, एमपीएस अपॉन ईपीएस दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है, सो पी रेशियो, बराबर है, तो ई रेशियो क्या होगा, अब वही निकालना है, तो कभी भी याद रखो
अगर पी रेशो कम है, नॉर्मली इन जनरल केस पी रेशो कम है उस कंपनी का, तो वो टाइम पे बाय करने का, बाय। समझा? पी रेशो कम रहेगा तो क्या होगा, मार्केट प्राइस कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? बराबर है, मार्केट प्राइस ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? सोचो क्या होना चाहिए, दिख रहा है ना आपको, सामने ही दिख रहा है। अगर उसका पी रेशो कम है, इसका मतलब मार्केट प्राइस कम रहेगा। समझा? तो मार्केट प्राइस कम है तो बाय ऑप्शन करने का। और भी बहुत सारी चीज है कि पी रेशो ज्यादा होता है तो कब बाय करना है, उसके लिए स्टडी एनालिसिस करना रहता है। ऐसा नहीं है पी रेशो ज्यादा रहता है तो फिर भी मैं बाय करता हूँ। क्यों बाय करता हूँ? उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो सब करना पड़ता है कि उसका भाई अर्निंग बढ़ेगा, इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करेगा, वो सब देखना पड़ता है। यस, यस धीरज, वेरी गुड। वॉल्यूम इंडिकेटर सब, एवरीथिंग। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, याद रखना, शेयर मार्केट है वो। मालूम पड़ा कि नहीं? तो फिलहाल वो बहुत सारी चीजें यहाँ अपने को सीखना नहीं है, वो पर्पज नहीं है अपना। उसके लिए चाहिए तो अलग से लेक्चर लेंगे, ठीक है, जब खत्म होने के बाद सारे पोर्शन, टाइम बचा तो। ठीक है, सो पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। चलो अब पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस, पहले किसका निकालेंगे लोग? सिग्मा। सिग्मा लिमिटेड। चलो अब सिग्मा लिमिटेड का पी रेशियो निकालो माय डियर स्टूडेंट्स। पी रेशियो देखो, अब सिग्मा लिमिटेड का पी रेशियो निकालोगे तो सिग्मा का एमपीएस कितना था? एमपीएस मार्केट प्राइस किधर गया क्वेश्चन में, देख लो, ये देखो एमपीएस। एमपीएस किधर है? ये रहा, दिख रहा है? सिग्मा का एमपीएस 60 है और इसका 37 है, और ईपीएस तो आपने जस्ट निकाला अभी, तो चलो कर लो फिर। तो बच्चा इसका एमपीएस है, मार्केट प्राइस है 60, मार्केट प्राइस है 60, और इसका अर्निंग पर शेयर कितना था? 2 रुपीज। अर्निंग समझो, अर्निंग कितना है पर शेयर के बेसिस पे दोनों ले लिया हमने, तो अर्निंग 2 है। तो इसका प्राइस अर्निंग रेशो कितना हो गया बेटा? प्राइस अर्निंग रेशो 30, मतलब 30 टाइम्स। आपको पी रेशो को टाइम्स में दिखाना है तो दिखा देने का, 30 लिखा तो फिर भी चलेगा। यस, 30 टाइम्स। ठीक है, चलो अभी सिग्मा का निकालो। सिग्मा, सिग्मा लिमिटेड, समझा? कौन सा लिमिटेड? सिग्मा लिमिटेड। सिग्मा लिमिटेड में क्या बेटा अपना पी रेशो आ जाओ। पी रेशो इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है बेटा, एमपीएस अपॉन ईपीएस। इसका एमपीएस कितना था? 37, और ईपीएस इसका था 1, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशो कितना आ गया? 37 टाइम्स। बराबर है, इसका प्राइस अर्निंग रेशो क्या हो गया? 37 टाइम्स। कॉटेट क्लियर है? मालूम पड़ा? बराबर है। तो कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको दो कंपनी में से चूज करना हुआ किसका शेयर खरीदना है, तो भाई किसका शेयर खरीदना, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो सिग्मा का खरीदना। ये रेशो इसका इसके कंपेयर में कम है और दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, तो इसका खरीदने का, सिग्मा का, जिसका पी रेशो कम है। समझा क्या? मालूम पड़ा? ओके, जिसका पी रेशो कम है उसका खरीदने का, ये नॉर्मल एज अ लेमैन के हिसाब से। बाकी स्टडी उसके लिए पढ़ना पड़ता है, काफी चीज स्टडी करनी पड़ती है। चलो सिग्मा इन सिग्मा हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद और क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में? थर्ड थर्ड वन देखना पड़ेगा ना अपने को, क्या बोल रहा है? सी, थर्ड वन क्या बोल रहा है बेटा अपने को? देखो बच्चा, if proposed merger takes place, if proposed merger takes place, so what would be the new EPS? बराबर है, what would be the new EPS for Sigma Limited, assuming that the merger takes place by exchange of equity shares and exchange ratio is based on current market price. ठीक है, चलो फिर वो पहले लिख लेते हैं। समझा? तो इधर देख लिया ना, नॉर्मली ऑप्शन जिसका पी रेशो कम रहेगा उसको ऑप्ट करने का। अगर मार्केट में खरीदना है आपको शेयर्स, तो जिसका पी रेशो कम है फिलहाल उसको खरीदो। मालूम पड़ा? ठीक है, क्यों?
क्योंकि उसका अर्निंग बढ़ रहा है और अभी प्राइस कम है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? उसके बेसिस पे ले लो, परचेज कर लो, उसका प्राइस अर्निंग रेशो कम है एज कंपेयर टू दिस सिग्मा, ठीक है, तो कर लेने का वैसा। फिलहाल चलो उतना बाइंग एंड सेलिंग नहीं करना है अपने को। इधर आ जाओ, थर्ड सी वाला। अब सी में देखो क्या बोल रहा है, इफ प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस, पहले वो क्वेश्चन में क्या दिया अपने को वो दिखा देता हूं मैं। इफ प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस, क्या बड़ा, प्रपोज मर्जर टेक्स प्लेस, तो क्या करना है अपने को, कैलकुलेशन किसका करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू ईपीएस निकालना है, न्यू ईपीएस। प्रपोज मर्जर टेक्स प्लेस तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू ईपीएस फॉर व्हाट, जिग्मा लिमिटेड, जिग्मा लिमिटेड, व्हाट इट, और किसके बेसिस पे रहेगा, बराबर है। ये तो चलो ये तो अपना नॉर्मल हो गया। तो इसमें सबसे पहला क्या करना पड़ेगा अपने को, स्वैप रेशो निकालना पड़ेगा। क्या बेटा, स्वैप रेशो, स्वैप रेशो बेस्ड ऑन व्हाट, मार्केट प्राइस। भाई अगर आपको प्रपोज मर्जर टेक्स प्लेस हो रहा है तो न्यू ईपीएस कैलकुलेट करना है अगर जिग्मा का, तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो जिग्मा कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा सिग्मा को। तो उसके लिए एक्सचेंज रेशो क्या है अपना, एक्सचेंज रेशो, हाँ एमपीएस के बेसिस पे, एमपीएस, हाँ कौन से बेसिस पे, एमपीएस के बेसिस पे, ठीक है। चाहिए तो आप इधर ये दिखा सकते हो, नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय जिग्मा लिमिटेड। पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना, जिग्मा कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा, किसको, सिग्मा को। तो स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पता ही आपको, एमपीएस ऑफ टारगेट फर्म, स्वैप रेशियो एमपीएस ऑफ व्हाट बेटा, टारगेट कंपनी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एमपीएस ऑफ व्हाट, एक्वायरिंग कंपनी, टारगेट कंपनी और एक्वायरिंग कंपनी, ठीक है। चलो, तो टारगेट कंपनी का एमपीएस, टारगेट मतलब सिग्मा, हाँ सिग्मा, सिग्मा का एमपीएस आया था कितना अपने को 37, और अपना एक्वायरिंग का एमपीएस कितना था, एमपीएस 60, तो रेशो बन गया 37/60। अब इसी के बेसिस पे देयरफॉर अब अपने को नंबर ऑफ शेयर इशू करना है कि नहीं, क्लियर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू हो जाएगा, अब नंबर ऑफ शेयर इशू करने के लिए रेशो 37/60 इंटू, चाहिए तो ये लिख सकता हूं मैं नंबर ऑफ शेयर्स, बट लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये ऊपर लिखा ही है ना बेटा, नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय जिग्मा, ठीक है, करेक्ट। तो 37/60 इंटू वॉट, इंटू वॉट, बराबर है, इंटू, अब वो टारगेट कंपनी के पास कितना शेयर था वो देख लो, टारगेट कंपनी का शेयर कितना था, ये देखो टारगेट कंपनी के पास कितना शेयर था, किधर गया, 18 लाख था ना, ये देखो ये रहा, 180 डिवाइड बाय 10 मतलब 18 लाख, बराबर 18 लाख शेयर्स, परफेक्ट। तो 18 लाख शेयर्स था, वेरी गुड, माहिर हो गया अभी, गुड, 18 लैक्स, 18, तो इधर डायरेक्ट 18 लिख रहा हूं मैं, मतलब 18 लाख शेयर्स, चलो लिख देता हूं 18 लाख शेयर्स। तो कितना आ गया बेटा, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा ये, आ जाओ 37/60 इंटू 18 कितना आ रहा है, ओके वेरी गुड, 11.10 lakhs शेयर्स, दैट्स इट, डू इट ना। फिर नंबर ऑफ शेयर्स, अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा जिग्मा के पास, वो देख लो, क्या, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जिग्मा लिमिटेड, टोटल नंबर ऑफ
shares of Sigma Limited after what? Acquisition. आफ्टर एक्विजिशन कितना हो जाएगा इसके पास? इज इक्वल टू, देखो इसके पास पहले से कितना है? 45 लाख शेयर्स है। जिग्मा का पहले से कितना शेयर्स है? 45 लाख शेयर्स एग्जिस्टिंग है, प्लस इसने जो न्यू इशू किया कितना? 11.10 लाख शेयर्स। तो कितना शेयर्स हो गया इसके पास? 56.10 लाख शेयर्स। परफेक्ट। चलो अब ये हो गया, तो न्यू ईपीएस आराम से निकाल सकते हो आप। सो न्यू ईपीएस ऑफ जिग्मा लिमिटेड, जिग्मा लिमिटेड फॉर्मूला पता ही है न्यू ईपीएस का। न्यू ईपीएस इज इक्वल टू वही सेम अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, ईएटी। अब ये ईएटी क्या हो जाएगा? आफ्टर एक्विजिशन या आफ्टर मर्जर वाला हो जाएगा। आफ्टर एक्विजिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी आफ्टर एक्विजिशन, क्योंकि बात का ही लिख रहे हो ना आप, आफ्टर एक्विजिशन ही तो कर रहे हो। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है बेटा। चलो सो ईएटी जरा देख लो, ईएटी कितना हो जाएगा दोनों का मर्ज करके? एक का 90 था, 90 लाख पहले वाले का, मतलब सिग्मा का, प्लस उसका ईएटी कितना है सिग्मा का? 18 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स। दोनों का मर्ज हो जाएगा बेटा इधर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया आफ्टर एक्विजिशन? 56.10 लाख शेयर्स। चलो बताओ आंसर निकाल लो फटाफट, कितना आ रहा है न्यू ईपीएस? ओके कितना? 1.925 पर शेयर। ओके सो 1.93 हो गया मतलब, तो ठीक है 1.93 लिखो या 1.925, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये न्यू ईपीएस आ गया आफ्टर एक्विजिशन। 1.92 नहीं लिखने का, 1.92 नहीं, 1.93 हो जाएगा ना बेटा। 1.925 है तो 1.93 लिखो या तो 1.925 लिख दो, दैट्स इट। ये भी हो गया अपना। फिर लास्ट केस क्या बोल रहा है? लास्ट केस फोर्थ वन वाला देखो क्या बोल रहा है अपने को। सी एवरीवन, फोर्थ वन अपने को बोल रहा है what should be the exchange ratio of Sigma Limited if Sigma Limited want to ensure the same EPS to members as before the merger takes place। ठीक है, तो इसके लिए आपको EPS के बेसिस पे देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड। अब EPS के बेसिस पे लेना पड़ेगा, तो आ जाओ फोर्थ वन डी। अब डी में क्या बोल रहा है? कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ exchange ratio if what? If Sigma Limited want to ensure, if Sigma Limited what beta? Want to ensure the same EPS, ensure the same EPS to members as before the merger takes place। ठीक है, करते हैं, ये फोर्थ वाला केस है। अब उसके लिए तो आपको स्वैप रेशियो निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो इसमें भी वही चीज, सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करेगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय जिग्मा लिमिटेड। बट ये बेसिस कौन सा हो जाएगा? इन प्रपोर्शन टू क्या हो जाएगा? इन रिलेटिव प्रपोर्शन टू ईपीएस हो जाएगा, ईपीएस, क्योंकि इधर ईपीएस सेम होना चाहिए। तो अब पहले आपने एमपीएस के बेसिस पे निकाला, बट इधर क्या बोल रहा है? ईपीएस सेम होना चाहिए, तो ईपीएस के बेसिस पे देखो अब कितना आएगा। ईपीएस के बेसिस के लिए
आपको डायरेक्टली वही सेम फंडा आ जाओ, क्या ईपीएस ऑफ टारगेट फर्म, जैसा ये निकाला है ना एमपीएस ऑफ टारगेट फर्म, देखो इधर किधर गया एमपीएस ऑफ टारगेट फर्म, इधर कैसा किया आपने, बस इधर एमपीएस की जगह क्या हो जाएगा ईपीएस, तो ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी फर्म कंपनी जो भी रहेगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से लिखना, अपॉन ईपीएस ऑफ व्हाट एक्वायरिंग कंपनी। तो बेटा टारगेट कंपनी का ईपीएस कितना था, निकाला था आपने पीछे 1 और एक्वायरिंग का 2 है, देयरफॉर क्या, देयरफॉर बराबर है, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू हो जाएगा, रेशियो होगा 1/2 इंटू, किसको इशू कर रहे हो आप भाई, टारगेट कंपनी को, टारगेट कंपनी के पास कितना शेयर्स था पहले से, टारगेट कंपनी के पास 18 लाख शेयर्स, जो कि आपने पहले भी देखा, तो ये बेसिस पे कितना आ जाएगा, कर लो कितना आ गया 9 लाख शेयर्स, मतलब इन रिलेटिव प्रोपोर्शन टू ईपीएस आप 9 लाख शेयर्स दोगे उसको ईपीएस के बेसिस पे, इन रिलेटिव प्रोपोर्शन टू ईपीएस 9 लाख शेयर उसको मिलेगा, तो अब 9 लाख शेयर मिलेगा, तो आ जाओ, अगर 9 लाख शेयर्स आप उसको दे रहे हो इट मींस व्हाट, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जिग्मा लिमिटेड कितना हो जाएगा, जिग्मा लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, देखो 45 लैक्स तो पहले से ही था जिग्मा के पास, प्लस अब ईपीएस का रिलेटिव प्रोपोर्शन लिया तो कितना शेयर्स आप दे रहे हो उसको 9 लाख शेयर्स, और एमपीएस के बेसिस पे कितना दे रहे थे 11.1, इधर 9 लाख शेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 54 लैक्स हो गया, 54 लाख शेयर्स, ओके बराबर। चलो अब न्यू ईपीएस कितना हो जाएगा, बराबर है, न्यू ईपीएस फॉर जिग्मा लिमिटेड देख लो अभी, निकाल लो डायरेक्टली, न्यू ईपीएस फॉर व्हाट ऑफ जिग्मा लिमिटेड, ठीक है, मालूम पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेशियो ऑफ ईपीएस, तो वो तो लिखा ही है पहले, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, तो आ जाओ, तो न्यू ईपीएस राइट इज इक्वल टू, अब ये किसके बेसिस पे, ईपीएस, न्यू ईपीएस ऑफ जिग्मा लिमिटेड, और इसमें मेन रिलेटिव प्रोपोर्शन ईपीएस का ही है, तो आ जाओ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही है ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, आफ्टर एक्विजिशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है, सो ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो रहा है वो तो आपने पहले भी देख लिया 90 लैक्स प्लस 18 लैक्स, रुपीज 90 लैक्स प्लस रुपीज 18 लैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अभी इधर कितना आया 54 लैक्स आया, 54 लैक्स, ठीक है, चलो तो कितना आ रहा है न्यू ईपीएस, न्यू ईपीएस कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है ना, यस 2 पर शेयर, 2 per share is the new EPS, न्यू ईपीएस अपना 2 पर शेयर आ गया, ठीक है बराबर, और देखो क्वेश्चन में अपने को बोला भी वही था ना कि व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ सिग्मा लिमिटेड वांट टू इंश्योर द सेम ईपीएस टू मेंबर एज बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस, बराबर है सेम, तो भाई अगर सेम ईपीएस चाहिए था, बराबर है, सेम ईपीएस मतलब कितना, वही देखो कितना 2, 2 का ईपीएस देख रहे हो ना आप, ईपीएस 2 था ना, इधर देखो इधर किया आपने, वेयर इज इट, या देखो
2 का पर शेयर का ईपीएस था, राइट है, 2 पर शेयर ईपीएस दे रहा है। तो अगर वही 2 ईपीएस देना है, बराबर है, 2 ईपीएस देना है, तो नॉर्मल सी बात है आपको कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, बराबर कितना 54 लाख, मतलब इधर क्या आ गया 9 लाख शेयर आपको इसको इशू करना पड़ेगा। कितना 9 लाख शेयर, राइट, मालूम पड़ा कि नहीं, कितना शेयर 9 लाख शेयर आप इशू करोगे। तो न्यू कंपनी में, न्यू कंपनी मतलब अपना जो जिग्मा लिमिटेड है एक्वायरिंग कंपनी में, ईपीएस नया कितना रहेगा 2 पर शेयर मिलेगा। कितना 2 पर शेयर के बेसिस पे ईपीएस मिलेगा। व्हाट इट, कितना 2 पर। ईपीएस का अगर रिलेटिव प्रोपोर्शन लिया तो ईपीएस मतलब इधर क्या बोल रहा है डायरेक्टली कि सेम ईपीएस मेंटेन करना है, तो ईपीएस के बेसिस पे अपने को रेशियो निकाला, ठीक है, ईपीएस के बेसिस पे रेशियो निकाला, तो कितना नंबर ऑफ शेयर आप दोगे उसको 9 लाख शेयर्स। ईपीएस इन रिलेटिव प्रोपोर्शन टू ईपीएस आपने किया तो आप कितना शेयर्स दोगे उसको 9 लाख, ठीक है। और आपने पहले भी निकाला ना, देखो किधर गया ईपीएस, ये 2 था और इधर सिग्मा का कितना था 1 था, ठीक है। अब इसी का रिलेटिव प्रोपोर्शन रखना है आपको 1/2, तो उसके बेसिस पे आपने ईपीएस का कैलकुलेशन किया, बराबर है। ईपीएस का नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय सिग्मा लिमिटेड इन रिलेटिव प्रोपोर्शन टू ईपीएस क्या 1/2 ही मेंटेन रखना है, तो 9 लाख शेयर्स, कितना 9 लाख शेयर्स दोगे आप, तो आपका ईपीएस भी मेंटेन हो जाएगा, जो सिग्मा लिमिटेड का ईपीएस था 1 के बेसिस पे, ठीक है, 1/2 था ना अपना, इन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, ठीक है। तो उसके बेसिस पे 9 लाख शेयर इश्यू होगा, 9 लाख शेयर इश्यू होगा, खत्म। और उसके बाद न्यू ईपीएस ऑफ सिग्मा लिमिटेड निकालना है तो निकाल लेने का, कितना आ गया 2 पर शेयर, ये न्यू ईपीएस हो गया, बराबर है। तो याद रखना सेम ईपीएस मेंटेन करना है अगर सिग्मा को, तो भाई ईपीएस का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में ले लिया 1/2, टारगेट का 1 और एक्वायरिंग का 2, तो उसके बेसिस पे सेम ईपीएस मेंटेन करने के लिए 9 लाख शेयर इशू करेगा एक्वायरिंग कंपनी, 9 लाख शेयर इशू करेगा, तो 9 लाख के बेसिस पे 54 लाख हो गया। और उसके बाद अगर ईपीएस के प्रोपोर्शन में अगर आप निकालोगे, बराबर है, न्यू ईपीएस, तो 2 पर शेयर आ गया, खत्म, और कुछ नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो डायरेक्टली निकाल के देख सकते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, खत्म, दैट्स इट।